السلام علیکم. تو میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کے فزکس کے چیپٹر نمبر 1 کے نومیریکل کو سالو کرنے جا رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سیکشن ڈی کے سٹارٹنگ کے 5 نومیریکل کو سالو کریں گے. باقی کے 5 نومیریکلز آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. چلے آئیں شروع کرتے ہیں. اب ہمارا پہلا نومیریکل تو بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, دا فریزنگ پوائنٹ آف مرکری از -39 سیلسیس. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا بنایا اور ڈیٹا میں ہم نے لکھا ہوا ہے ٹی سی از اکول ٹو مائنس کا 39 سیلسیس. یہ سیلسیس میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنورٹ کرنا ہے, کنورٹ اٹ انٹو فیرن ہائٹ. اس کو فیرن ہائٹ میں کنورٹ کرنا ہے, یہ ٹی ایف معلوم کرنا ہے, یعنی کہ اینڈ دا کمفرٹ لیول ٹیمپریچر آف 20 سیلسیس. اب کمفرٹ لیول ٹیمپریچر ہمارے پاس کیا ہے 20 سیلسیس, یہ بھی ٹی سی ہے, اور اس کو کنورٹ کس میں کرنا ہے, کیلوین میں. کنورٹ اٹ انٹو کیلوین. اب اس کو ہم نے کیلوین میں کنورٹ کرنا ہے, یعنی کہ ٹی کے میں. ٹھیک ہے, بس اتنا سا ڈیٹا ہے. اب ہمارے پاس فارمولے کی ہم نے ہیڈنگ ڈالی. ٹھیک ہے, اوکے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کنورژن آف ٹیمپریچر کے صرف 3 فارمولے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا کیا ہے, سیلسیس سے کیلوین میں کنورٹ کرنا, اور اس کا فارمولا یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹی کے از اکول ٹو ٹی سی پلس 237 پلس کرنا ہے اس میں. دوسرا ہے فیرن ہائٹ ٹو سیلسیس, فیرن ہائٹ سے سیلسیس میں کنورٹ کرنا ہے, اور اس کا فارمولا کیا ہے ٹی سی از اکول ٹو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 9 ٹی ایف مائنس 32. ٹھیک ہے, اب تیسرا ہے سیلسیس سے فیرن ہائٹ میں کنورٹ کرنا ہے, اس کا فارمولا کیا ہے ٹی ایف از اکول ٹو 9 ڈیوائڈ بائی 5 ٹی سی اور پلس 32. ٹھیک ہے, بس یہ 3 فارمولے ہیں جو کہ آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے. بس یہ 3 ہی ہیں جس میں آپ کو ٹیمپریچر کو کنورٹ کرنا پڑے گا, اور شروع کے نومیریکلس میں یہی 3 استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں نومیریکل کی طرف. تو اس نومیریکل میں ہمیں کیا معلوم کرنا ہے, ایک معلوم ہمیں کرنا ہے ٹی ایف اور دوسرا ٹی کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ٹی ایف یہ والا فارمولا استعمال ہوگا اور ایک یہ ٹی کے والا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے ٹی ایف والا فارمولا لگایا. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے فارمولا لکھا, کیلکولیشن کی ہیڈنگ ڈال کے ہم نے فارمولا لکھا, اور اس کے بعد یہ جو ٹی سی ہے اس کی جگہ پہ ہم نے ٹی سی کی ویلیو پٹ کری. ٹی سی کی ویلیو کیا ہے -39. ٹھیک ہے, پلس 32 ایسے لکھ دیا. اب ہم نے یہ 9 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ہے, اس کو آپس میں ڈیوائڈ کرا تو ہمارے پاس آنسر آیا 1.8, اور مائنس کا 39 ایسے ہی آ گیا, اور پلس 32 بھی ایسے ہی آ گیا. اب 1.8 کو ملٹیپلائی کر دیا 39 سے, تو ہمارے پاس آنسر آیا مائنس کا 70.2 اور پلس 32. اب پلس مائنس کیا ہوتا ہے, مائنس. تو 70.2 میں سے مائنس کر دیا 32 کو, تو ہمارے پاس آنسر آیا 38.2 نیگیٹو. کیونکہ یہ 70.2 جو ہے یہ بڑا ہے, 32 چھوٹا ہے, تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے سائن کس کا, بڑے والے نمبر کا سائن آتا ہے, تو 70 والا سائن آئے گا ہمارے پاس. تو یہ ٹی ایف کا ہمارے پاس آنسر ہے, ٹی ایف از اکول ٹو مائنس کا 38.2 فیرن ہائٹ. اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے, ٹی کے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیمپریچر جو سیلسیس میں ہے اس کو اب ہم نے کیلوین میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ بہت آسان سا فارمولا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹی سی کی جگہ ٹی سی کی ویلیو پٹ کری. اب یہ والی ویلیو پٹ نہیں 39, اب یہ والی ویلیو پٹ کرنی ہے. اس میں ہم نے اس والے سیلسیس کو کیلوین میں کنورٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے یہی والی ویلیو پٹ کری, 20 پٹ کرا. اب ہم نے 20 پلس 273 ان کو آپس میں پلس کرنا ہے, تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 239 کیلوین. ٹھیک ہے, تو یہ آنسر بس اتنا صحیح ہے, یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نومیریکل کی طرف. اوکے, تو ہمارے پاس دوسرا نومیریکل ہے, دا بوائلنگ پوائنٹ آف liquid nitrogen is minus 321 فیرن ہائٹ. ٹھیک ہے, یہ ٹی ایف ہمیں دیا ہوا ہے از اکول ٹو مائنس 321 فیرن ہائٹ. اب اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے, چینج اٹ انٹو ایکویویلنٹ کیلوین ٹیمپریچر. اس کو کیلوین میں کنورٹ کرنا ہے, یعنی کہ ٹی کے میں. بس اتنا سا ڈیٹا تھا. اب ہم نے فارمولے کی ہیڈنگ ڈالی. دیکھیں اس میں ہمیں فیرن ہائٹ سے کیلوین میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو فیرن ہائٹ سے کیلوین میں ہم ڈائریکٹ کنورٹ نہیں کر سکتے, اس کا فارمولا ہے تو, لیکن وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اگر ہم انہی 3 فارمولوں میں رہ کر کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں فیرن ہائٹ سے سیلسیس میں جانا ہے اور سیلسیس سے کیلوین میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں 2 فارمولے لگائیں گے. پہلے فارمولے میں ہم فیرن ہائٹ سے سیلسیس میں جائیں گے, اور دوسرے میں ہم سیلسیس سے کیلوین میں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے پہلا فارمولا لگایا, ٹی سی از اکول ٹو 5 ڈیوائڈ بائی 9 ٹی ایف مائنس 32. ٹھیک ہے, یہ فارمولا ہم نے پٹ کرا سب سے پہلے, اور ٹی ایف کی ہم نے ویلیو لکھی. ٹی ایف کی کیا ویلیو ہے, مائنس 321 اور مائنس 32 ایسے لکھا. اب مائنس مائنس کیا ہوتا ہے, پلس, تو ہم نے ان دونوں کو پلس کیا آپس میں.
321 और 32 को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 353। ठीक है, अब साइन एक जैसे थे तो एक ही साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब हमने 5 को 9 से डिवाइड करा और 353 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 196.11, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, और सेल्सियस में ये अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया। इसमें ये फॉर्मूला क्या है, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 237। इसमें हमने टी सी के वैल्यू लिखी क्या है जो अभी हमने निकाली है, माइनस का 196.11 और उसमें प्लस करना है 273 को। प्लस माइनस माइनस, तो हमने इस वैल्यू को इससे माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 77 के। तो हमारे पास लास्ट जो फाइनल आंसर आया यानी कि फ़ारेनहाइट से जो हमने केल्विन में कन्वर्ट करना था उसका जो हमारे पास आंसर आया वो 77 केल्विन आया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम यानी कि हमें वी मालूम करना है, तो ये हमने डेटा में लिख दिया। उसके बाद हमें इन्होंने बोला है 0 सेल्सियस पे यानी कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हम आपको पता है टेम्परेचर को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस से केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से प्लस करते हैं। तो जाहिर बात है जीरो में जब हम 273 प्लस करेंगे तो 273 ही आएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमें इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है 1.0 एटमॉस्फेयर, तो हमने लिख दिया प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर हमें पता है किसके बराबर होता है, 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि एन कहाँ से आ गया। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, अग्राम मोल, इसका मतलब है 1 ग्राम मोल। ठीक है, तो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने लिख दिया एन इज इक्वल टू 1 मोल क्योंकि इन्होंने बोला ग्राम मोल यानी कि 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें गैस है 1 मोल, तो हमें उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, और आर हमारे पास कांस्टेंट होता है आपको पता है। हमने अब फॉर्मूले की हेडिंग डाली, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जाहिर बात है डेटा को देख के हमें समझ आ गया है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जनरल गैस का इसमें फॉर्मूला लगेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पी मालूम नहीं करना, वी करना है। तो पी यहाँ पे वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे नीचे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, एन की जगह पे 1 आया, आर की जगह पे 8.314 आया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। और टी की जगह पे हमने 273 लिखा, प्रेशर का हमने 1.01 एक्सपोनेंट 5 लिखा। जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2269.72 और नीचे का ऐसे ही लिखा। अब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया v इज इक्वल टू 0.02242 मीटर क्यूब। देखिए ये जो मीटर क्यूब है ना, ये इसकी SI यूनिट है वॉल्यूम की, लेकिन जो बुक में हमें आंसर दिया हुआ है वो हमें लीटर मोल में दिया हुआ है ना। अगर आप बुक में ऐसा आंसर नहीं होता तो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बुक में लीटर पर मोल में दिया हुआ है तो अब हमें भी लीटर पर मोल में करना पड़ेगा। तो देखिए हमें पता है कि हम 1 ग्राम ऑफ मोल की बात कर रहे हैं यानी कि मीटर क्यूब के साथ क्या आएगा, पर मोल। ठीक है, पर मोल आएगा। ये एक बात हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो अब हमें मीटर क्यूब को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये जो वैल्यू आई हमारे पास आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इस मीटर क्यूब की जगह हमारे पास किस में आ जाएगा, लीटर में। तो हमारे पास आंसर आएगा 22.4 लीटर और पर मोल ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा बुक से मैच कर रहा है, तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liters contain 3 किलोग्राम ऑफ एयर। ठीक है, अब ये जो 112 लीटर है ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर में भी होती है। तो ये वी है, वी हमारे पास v इज इक्वल टू 112 लीटर हमने डेटा में लिख दिया। और हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो 3 kg दिया हुआ है, ये हमने डेटा में लिख दिया। ठीक है, अब
एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर, हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है, 18 एटमॉस्फेयर है. हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम कितनी एयर और डालेंगे कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए. मतलब पहले जो प्रेशर था वो 18 था, और अब जो हमारे पास दोबारा इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है वो 21 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है. कि अब हम कितनी एयर डालेंगे, वो जो हमारे पास एक टैंक है जिसके अंदर एयर है और प्रेशर जिसमें 18 एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर अब हम कितनी एयर डालेंगे जो प्रेशर जो है वो 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर हो जाए. ठीक है, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. ठीक है. अच्छा, अब जो वॉल्यूम है उस टैंक का वॉल्यूम इनिशियल भी वही होगा और फाइनल भी, यानी कि V1 भी हमारे पास वॉल्यूम वही है, और देखिए हमने डेटा में लिखा है V2 भी हमारे पास वॉल्यूम वही है. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और प्रेशर चेंज होगा. अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें असल में मालूम करना है डेल्टा एम को. तो सबसे पहले हम M2 मालूम करेंगे और उसके बाद हम डेल्टा एम मालूम करेंगे. इसकी वजह यह है कि पूछा ये गया है कि कितनी और एयर ऐड करेंगे हम, ये नहीं कहा कि टोटल एयर बाद में कितनी होगी. ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला लिखा, हमारे पास फॉर्मूला है P1V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय M2. हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, फॉर्मूले को हमने दोबारा से लिखा. अब हमें मालूम, क्योंकि पहले M2 करना है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एम के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू M2 माइनस M1. तो हमारे पास M1 है लेकिन M2 नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए M2 मालूम करेंगे. तो M2 के लिए हम अब इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे. तो M2 सबसे पहले नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जो P1 V1 को हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में, और M1 वहां चला जाएगा P2 V2 के पास. अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू अब हमारे पास अरेंज हो चुकी है. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. प्रेशर 21 है और V2 की वैल्यू लिखेंगे 112 और M1 की है 3 हमारे पास. ठीक है, और P1 हमारे पास 18 एटमॉस्फेयर है और V1 और V2 हमारे पास सेम है, यानी कि 112. ठीक है, अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7056, और जब हम नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2016. अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो M2 का आंसर आएगा वो आएगा 3.5 किलोग्राम. ठीक है, ये हमारे पास आ गया M2 का आंसर. अब हम लगाएंगे डेल्टा M इज इक्वल टू M2 माइनस M1. अब ये जो हमारे पास M2 की वैल्यू आई है इसको हम लिखेंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे M1 वाली वैल्यू को, तो हमारे पास चेंज आ जाएगा. डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम. तो ये हमारे पास अब असल आंसर ये है. ठीक है, क्योंकि हमसे उन्होंने ये पूछा है कि हमने कितनी एयर और ऐड की है, ये नहीं कहा कि टोटल एयर कितनी हो गई है. ठीक है, तो हमने जो बाद में एयर डाली थी उसमें से इनिशियल वाली को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया कि बाद में इतनी एयर डली है. तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है. हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बलून कंटेन 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर. एक गुब्बारा है जिसके अंदर 0.04 मीटर क्यूब की एयर है एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा में लिखा कि V1 हमारे पास कितना है 0.04 मीटर क्यूब. ठीक है, और प्रेशर कितना है 120 किलो पास्कल. अब कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम. क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द प्रेशर, हमें प्रेशर मालूम करना है. हमारे पास जो पहले प्रेशर दिया हुआ है 120 किलो पास्कल, वो प्रेशर हुआ P1, और जो अब हमें मालूम करना है उस प्रेशर को हम कहेंगे P2. ठीक है, to reduce its volume to 0.025 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब हमें वॉल्यूम दोबारा से दिया जा रहा है, तो जो पहले वाला वॉल्यूम था वो V1 है और ये वाला वॉल्यूम V2 है हमारे पास. ठीक है, अच्छा, अभी जो प्रेशर है हमारे पास है इन्होंने किलो पास्कल में दिया हुआ है, अब हमें इसे पास्कल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, किलो हटाना है तो जाहिर बात है आप जानते हैं किलो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब
हमने फॉर्मूला की हेडिंग डाली, हमारे पास बिल्कुल सीधा सादा सा फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये कोई फार्मूला तो नहीं है वैसे, लेकिन हमने जो डेरिवेशन करी थी उसके दरमियान में आता है। ठीक है, कैलकुलेशन की हमने हेडिंग डाली, हमने फॉर्मूले को दोबारा से लिखा। अब हमें मालूम करना है P2, तो हम V2 P2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सबसे पहले हम P1 की वैल्यू लिखेंगे और साथ में हम V1 की वैल्यू लिखेंगे और नीचे हम V2 की वैल्यू लिखेंगे। जब हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2800 आंसर आएगा, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी। जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 192000 पास्कल। ठीक है, अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में राउंड ऑफ करके आया हुआ, तो अगर आप चाहें यहीं पे छोड़ देंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसे बुक की तरह राउंड ऑफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे आराम से राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जीरो जो पॉइंट है वो बिल्कुल लास्ट में। अब अगर इस पॉइंट को हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाएंगे तो ये 5 डिजिट मूव होगा। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा तो 1.9 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो हमारे पास ये प्रेशर का आंसर आ गया P2 का, यानी कि बस ये इतना आसान सा हमारे पास न्यूमेरिकल है।